A very good morning dear aspirants. Byju's Government Exams Prep channel में आपका स्वागत है. Welcome to the lecture on this day in history. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 12 जनवरी को घटित हुई थी. We shall discuss all the important facts and events that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन क्या-क्या खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है. Beginning with 1598, जीजाबाई शाहजी भोसले was born. जीजाबाई शाहजी भोसले का जन्म आज ही के दिन 1598 में हुआ था. जीजाबाई शाहजी भोसले, जिन्हें राजमाता जीजाबाई और जीजाऊ के नाम से भी जाना जाता था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता है. Jijabai was the mother of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Empire. इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1598 में. She was born to Mahalasabai Jadhav and Lakhuji Jadhav of Deolgaon near Sindkhed in present-day Buldana district of Maharashtra. Jijabai was married at an early age to Shahaji Bhosle, the son of Maloji Bhosle of Verul village, a military commander serving under Nizam Shahi Sultans. राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी को स्वराज्य के बारे में सिखाया और उन्हें एक महान योद्धा बनाने के लिए सक्षम बनाया. It is said that Jijabai's upbringing was one of the main reasons behind Chhatrapati Shivaji Maharaj's unending affection for Swaraj. 17 जून 1674 में इनका निधन हो गया. आज का अगला इवेंट जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1863. इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल गुरु एंड अ फिलोसोफर स्वामी विवेकानंदा वाज बोर्न. प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु और एक दार्शनिक स्वामी विवेकानंदा का जन्म हुआ था. स्वामी विवेकानंदा वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे. उनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता. Swami Vivekananda was named Narendranath Datta at birth. He was an Indian monk and a chief disciple of Ramakrishna Paramahamsa. Swami Vivekananda was a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. He is credited with raising interfaith awareness, bringing Hinduism to the status of major world religion during the late 19th century. उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था. He was a major force in the revival of Hinduism in India and contributed to the concept of Indian nationalism as a tool to fight against British Empire in colonial India. It is said that his teachings opened up interfaith debates and interfaith awareness. उन्होंने अंधविश्वासों के खिलाफ भी काम किया. स्वामी विवेकानंदा ने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. स्वामी विवेकानंदा founded the Ramakrishna Mission. Some of the famous works of Swami Vivekananda are Karma Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, My Master, which is based on his Guru Ramakrishna Paramahamsa, Vartaman Bharat, etc. साल 1902 में इनका निधन हो गया इन बेलूर मठ इन वेस्ट बंगाल. Swami Vivekananda's birthday, that is 12th of January, is celebrated as National Youth Day in India every year since the year 1985. अब आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर जो है 1934. रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर सूर्य सेन वाज हैंग्ड. क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को फांसी दी गई थी आज ही के दिन यानी कि 12 जनवरी 1934 में. पहले सूर्य सेन के बारे में जान लेते हैं. सूर्य सेन चिटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े हुए थे. He was an important revolutionary in the history of India and was associated with the Chittagong Armory raid. इनका जन्म हुआ था 22 मार्च 1896 में चिटगांव के नोआपारा में जो वर्तमान बांग्लादेश में है. As an undergraduate student in the year 1916, he heard about freedom movement in India and was instantly attracted towards revolutionary ideas. Following this, he joined the अनुशीलन समिति जो बंगाल के एक क्रांतिकारी संगठन था. अनुशीलन समिति का मकसद था भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना.
इसी उद्देश्य से अनुशीलन समिति ने भारत और विदेशों में अन्य क्रांतिकारी संगठनों यानी कि रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सहयोग किया। इसका नेतृत्व औरोबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष ने किया था। कमिंग बैक टू सूर्य सेन, साल 1918 में इन्होंने पढ़ाई संपूर्ण की और इन्होंने चिटागोंग में मैथ्स टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही ये युवाओं को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग भी देते थे। अब बात करते हैं चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे में। सूर्य सेन along with training youth on making bombs also hatched a plot to raid and seize arms and ammunition from the government and cut off communication from the rest of India to isolate Chittagong. This incident came to be known as Chittagong Armory Raid. इन्होंने सरकार के हथियार यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रेड करने की साजिश रची। इसी को चिटागोंग शस्त्रागार कांड के रूप में जाना जाता है। इस प्लान को अंजाम देने में गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, अनंत सिंह और कई ऐसे रेवोल्यूशनरीज ने इनका साथ दिया। इस प्लान को अंजाम दिया गया था ऑन 18th of April 1930। इसी दिन सूर्य सेन ने इन क्रांतिकारियों के साथ चिटागोंग पुलिस आर्मरी को रेड किया। The revolutionaries seized arms but failed to locate ammunition. However, they did manage to cut off telephone, telegraph and railway lines. Surya Sen hoisted the Indian flag on the premises of Police Armory and proclaimed a provisional revolutionary government. इस इंसिडेंट के बाद सूर्य सेन hid in disguise in many places to avoid capture by British. लेकिन फरवरी 1933 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। This was because नेत्र सेन in whose house सूर्य सेन was hiding betrayed him. सूर्य सेन को 12 जनवरी 1934 में फांसी दी जाने से पहले पुलिस ने बेरहमी से टॉर्चर किया। जब इनको फांसी दी गया तब ये 39 साल के थे। Now let us have a look at the next topic for today, जो है 1936 Indian lawyer and politician मुफ्ती मोहम्मद सईद was born. भारतीय वकील और राजनेता मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद सईद was a politician from Jammu and Kashmir. He has served as the Chief Minister of Jammu and Kashmir twice from November 2002 to November 2005 and March 2015 to January 2016. ये राजीव गांधी कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के रूप में नियुक्त किए गए थे। He was also the Home Minister of India from December 1989 to November 1990. Mufti Mohammad Saeed founded the Jammu and Kashmir People's Democratic Party. This political party was founded in July 1999. इस पार्टी का उद्देश्य कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कश्मीरियों के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू करने के लिए भारत सरकार को राजी करना था। पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर महबूबा मुफ्ती इज मुफ्ती मोहम्मद सईद्स डॉटर। 7 जनवरी 2016 में इनका निधन हो गया। Let us have a look at the next topic for today, जो है 2020 eruption of Taal volcano in Philippines. फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था 12 जनवरी 2020 में। जैसे कि हम सब जानते हैं 2020 में ऐसे कई दुर्घटनाएं घटित हुई, उनमें से एक थी ताल ज्वालामुखी का विस्फोट। ताल वोल्केनो इज अ लार्ज वोल्केनिक क्रेटर फिल्ड बाय ताल लेक इन फिलीपींस। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इट इज द सेकेंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन फिलीपींस। There have been 34 recorded historical eruptions in this volcano, all of which were concentrated on Volcano Island near the middle of Taal Lake. 2020 में ताल के विस्फोट के परिणाम स्वरूप 39 लोगों की मौत हो गई थी। आपको एग्जाम्स के लिए ताल वोल्केनो का लोकेशन याद रखना होगा और ये याद रखना होगा कि दिस इज द सेकेंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन फिलीपींस। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ये सारे क्वेश्चंस आज के डिस्कशंस पर ही आधारित है। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाउ इज मालोजी भोसले रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी? छत्रपति शिवाजी से मालोजी भोसले का क्या संबंध है? ऑप्शन ए ब्रदर यानी कि भाई, ऑप्शन बी फादर यानी कि पिता,
ऑप्शन सी ग्रैंडफादर यानी कि दादा, या ऑप्शन डी ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य सेन इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज विच ऑफ द फॉलोइंग? सूर्य सेन को इतिहास में निम्नलिखित में से किसके रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए पोएट यानी कि कवि, ऑप्शन बी रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी, ऑप्शन सी मॉडरेट यानी कि उदारवादी, या ऑप्शन डी सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज स्वामी विवेकानंदा नेम्ड एट बर्थ? जन्म के समय स्वामी विवेकानंदा का नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्ता, ऑप्शन बी नरेंद्र दत्ता, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ दत्ता, या ऑप्शन डी रामनाथ दत्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंसा, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन सी गदाधर छट्टोपाध्याय, या ऑप्शन डी शारदा देवी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। वेयर इज ताल वॉल्केनो लोकेटेड? ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी ताइवान। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। हु फाउंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन सी मुफ्ती मोहम्मद सईद, या ऑप्शन डी गुलाम नबी आजाद। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द ऑथर ऑफ वर्तमान भारत? वर्तमान भारत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन बी सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी सूर्य सेन, या ऑप्शन डी औरोबिंदो घोष। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।